سیدی نصیر رحمت اللہ علیہ کے کلام کے لیے کہا گیا میں پیش کر رہا ہوں. راستے صاف بتا دے سبحان اللہ سبحان اللہ ہے کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود اور سلام اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود اور سلام یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سرکار کی آمد گھنٹار کی آمد مدنی کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ نعرے مارو نوکر میں نوکر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کو گلاتے
سیراج بڑی ہلچل ہے میرا سیراج بڑی ہلچل ہے مدینے سے بلاوا اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ شناختی کارڈ کی کاپی جمع کی جا رہی ہے کس مقصد کے لیے؟ عمرے کے ٹکٹ مکہ پاک مدینہ پاک کی حاضری کے لیے ماشاءاللہ 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 مدینے سے بلاوا مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یہاں مرضی نہیں چلتی دیکھیں بات یہ ہے کہ کاپیز تو یہاں سبھی نے ڈالی ہوگی لیکن جانا کس نے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کیونکہ مدینے والا ہی بلوا اس کی نظریہ انتجاب کہ میرا بھی تو اپنے ساتھ لے جا میرا بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا شیخ سماعت سید النساء حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں شعر ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی جتنا لنگر کھا رہا ہے یہ
لگ جا کہیں گے سے لگ جا کیوں کہ ریزہ سے ہو کر یہ شعر آپ کر رہا ہوں کہ کہے گا رب کسے جانے تو رضوان کیونکہ وسیلہ سیدہ کا ہے وسیلہ سیدہ کا وسیلہ سیدہ کا فرید بھائی نے منقبت امام علی مقابل کی کہا کو تین اشیاء سماعت کیجئے بغار گلاب ہے حسین لاجواب ہے بغار گلاب ہے حسین لاجواب ہے محمدی گلاب ہے حسین لاجواب ہے محمدی گلاب ہے حسین لاجواب ہے دنیا کے سب کے سیدم سے منائے سر مرزایا حسین لاجواب حسین لاجواب حسین لاجواب حسین لاجواب جدید آج حسین حسین بنتا خدا بناتا ہے حسین لاجواب ہے حسین لاجواب ہے میں اپنے آپ کے بھائی پسندیدہ عالم دین حفیظ اللہ مصطفی صاحب کو بیان کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور بیان سے ہمیں نوازے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ دیر ہائی نہیں رہوں گا اور چند باتیں آپ کو گوش منار کروں گا اللہ ہم سب کو حضور کی لازوال محبت سے مالا مان فرمائے ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے
आप आए तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसी थी। हम हुजूर की आमद से पहले के हालात पढ़ते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 571 साल का एक तवील ज़माना बीत चुका था। हज़रत इंसान अपने खालिक व मालिक को भूल चुका था। अखलाकी कदरें ज़वाल पजीर थी। सैयद सलीम गिलानी फरमाते हैं, ज़ीस्त यखबस्ता थी तारीख निहा खानों में, एक किरण फूटी उजाला हुआ ऐवानों में, जहर आलूद फ़िज़ाएं थी नमू से यारी, आप आए तो बहार आ गई वीरानों में। किसने अल्लाह से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा, उन सब मुहसिन न फरिश्तों में न इंसानों में। पूरी दुनिया में अंधेरे थे, आका तशरीफ़ लाते हैं मक्का के घटाटोप अंधेरों में, तौहीद का चिराग जला देते हैं। फिर इतने उजाले अनवार उतरते हैं कि जो लोग दर दर पे धक्के खा रहे थे, आका की सदाए दिल नवाज ने उन्हें खींच के एक खुदा के आगे झुका दिया। मेरे नबी कार नबूवत की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देने के लिए मैदान अमल में है। कूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू की सदा जज़ीरे अरब में गूंज उठती है। तो जिस शख्स को सबसे पहले ईमान नसीब हुआ, ईमान लाने में जो सबकत इख्तियार करता है, बहुत बड़ा नाम है। वो इस उम्मत का पहला सूफी भी है, सहाबी भी है, वो रास्तगो भी है, वो रास्तगो भी है। वो मामलाते दुनिया को सुलझाने का ढाबा और सलीका भी जानता है। मेरे नबी ने उस जवान की तारीफ़ की, फरमाया मैंने जिसको भी दीन दिया उसने तामुल से तरद्दुद से काम लिया, लेकिन फरमाया अबू बकर वो जवान है, मैंने दीन दिया इसने झोली में डाल दिया। आका आए तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसी। भाईजान ये मेरा और आपका फ़ख्र एजाज़ शरफ है कि अल्लाह ने हमें वो नबी अता किया जिसके लिए नबियों ने भी दुआएं की हैं। इब्राहिम, मैं इंशाल्लाह 10 मिनट में गुफ्तगू समेट दूँगा। ये सिर्फ मेज़बान की दिलजोई के लिए, वरना तकाज़ा तो ये था कि शाह साहब ही हाथ उठा के दुआ फरमा देते। यकीनन सादात दुआ फरमाएँ तो क़यामत के दरवाजे खुले होते हैं। और शाह साहब मेरे महबूब तरीन, यानी कि वो मेरी तारीफ कर रहे, मैं उनकी कर रहा हूँ, ये हकीकत बात है। जहाँ शाह साहब का नाम हो तो ये दिल का किबला झुक जाता है। बेपनाह मोहब्बत है शाह साहब से। 2-4 बातें हैं और तवज्जो से सुनिएगा। हम उस नबी के उम्मती बन के आए जिसके लिए नबियों ने भी दुआएं की हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें खड़े करके कहते हैं, रब्बना वबास फीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तमीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। यार एक शख्स रोज़ाना मकान की छत पे खड़ा होता है और उदास निगाहों से उन राहों को देखता है जिन राहों से सोने मोहम्मद ने गुजरना था, और बड़ा बेचैन रहता था, बड़ा मुस्तरिब रहता था। ज़ुबान हाल से ये कहा करता था कि केरियाँ मैं केरियाँ, दर्दो गम दी केरियाँ, अटियाँ चुक चुक रामा वेखा तेरियाँ। ये बहीरा राहब है जो रोज़ाना हुजूर की राहों में आके खड़ा हो जाता और उन राहों को देखता जिन राहों से सोने मोहम्मद ने गुजरना था। मेरे नबी की आमद से 1000 साल कबल यमन से कुब्बा अव्वल उलमा की जमात को लेकर निकलता है। रास्ते में यसरब आया, उलमा ने बताया कि ये जा आखिर ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जा है, और साथ ही उलमा ने माजरत कर ली कि अब हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, हमारी आखिरी हिचकियाँ भी इसी सरजमीन पे टूट जाएगी। उसने फिर वहाँ उलमा के लिए 300 घर बनाए और एक घर उसने मेरे रसूल के नाम का बनाया। यार जो घर हुजूर के नाम का बना वो बड़े चाव से बना, बड़ी अकीदत से बना, और वो घर उस जमात के जो बड़े आलिम थे शामून, वो उनके सुपुर्द किया। फिर हुजूर के नाम एक ख़त लिखा। ख़त की तहरीर बड़ी मीठी है। मैं तो बावल आप पर ईमान लाता हूँ, आप पर उतरने वाली किताब की तस्दीक करता हूँ। हुजूर मैं आपका सबसे पहला उम्मती हूँ और मुझे बरोज़ हशर अपने गुलामों में शुमार फरमाइए। ख़त लिखा, शामून को दिया। एहसास ज़िम्मेदारियाँ खींच के तुब्बा को यमन ले आती हैं। गुजरते बस इतना कहा कि मेरे पे एक मेहरबानी करना, अगर हुजूर मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ले आए तो मुझे उनके आने की खबर देना, और अगर वो मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ना ला सके तो ये ख़त संभाल लो, इसको आगे नस्लों में मुंतकिल कर देना। तुब्बा चला गया। उस शाख की बस्ती हुजूर की राहों में डेरे जमा के बैठ जाती है। तुब्बा रोज़ाना वो राहें तकता, कहीं से कोई संदेशा, हवा का कोई झोंका मेरे नाम पैगाम मोहब्बत ले आए और मैं खुद को खींच के दरे हबीब तक ले चलूँ। तुब्बा हिजरे रसूल में, याद रसूल में तड़प तड़प के जान दे देता है। उस शाख की बस्ती हुजूर की राहों में पलके बिछाए बैठी है।
भाई जान फिर 1000 साल का तवील ज़माना बीत जाता है। आका दुनिया में जलवा फिराज होते हैं। 53 साल मक्का में गुजारे, फिर हुक्म आया कि आप मदीने वाले आपकी राहें तक रहे हैं। हुजूर मदीना तशरीफ लाते हैं, तलाल बदरू अलैना की सदाएं मदीना में गूंज उठती है। अच्छा वो खत जो 1000 साल पहले तुब्बा ने हुजूर के नाम लिखा, मदीना में जिस शख्सियत तक पहुंचा वो मदीने का बड़ा मोतबर सहाबी है। भाईजान उनका नाम लें तो लहजा मीठा हो जाता है। उस सहाबी का फख्र है कि उन्हें हुजूर की मेज़बानी का भी शरफ मिला है। रूमी कहते जब हुजूर उनके घर तशरीफ ले जाते हैं तो उन्हें चा चढ़ जाता है। इमरोज शाह शाह मेहमान शुदस्तो मारा, जबरील बा मलाइक दरबार शुदस्तो मारा। कहते आज शाहों का शाह मेरे घर का मेहमान बना है और नूरियों का सरदार जबरील मेरे घर का पहरा दे रहा है। उस शख्सियत का नाम हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये खत उन तक पहुंचा, हुजूर मदीना तशरीफ ले आए। मुशावरत से ये बात तय पाई कि तकाज़े मोहब्बत ये है कि हुजूर तशरीफ लाए तो ये खत सबसे पहले हुजूर की खिदमत में पेश किया जाए। उसके लिए अबू लैला का इंतखाब किया गया। मंजर बड़ा दिल नशीन है। अबू लैला के हाथ में खत है, हुजूर तशरीफ लाए और फिर ला करके वो 1000 साल पुरानी मोहब्बत की कहानी छेड़नी थी और फिर तुब्बा का खत पेश किया जाना था। तुब्बा सामने, अबू लैला सामने खड़े हैं, मेरे करीम तशरीफ ले आए और अबू लैला को देख करके फरमाते हैं क्या आप अबू लैला हो? काला नाम, जी मैं अबू लैला हूँ, लेकिन ये तो बताएं कि आपको किसने बताया? फरमाया जिस अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। फरमाया कि मेरी राहों में कुछ दीवाने खड़े थे और तुब्बा ने मेरे नाम मोहब्बत नामा छोड़ा था। फरमाया मेरे गुलाम तुब्बा का खात मुझे दे दे। कहानी एक और दोस्त की सुनिएगा, एक और जो है वो जवान का तस्करा सुनिएगा, कलेजा ठारीगा, इसी पे गुफ्तगू को समेट लूंगा। जवान का नाम है सुलमान, ताल्लुक है ईरान के मशहूर शहर अस्फहान से। उस शहर की सरदारी भी उस खानदान के पास है। उसका वालिद मजूसी था। मजहब की तालीम उस बच्चे को उसने घर से दिलाई। नाम सुलमान, और आज उस जमाना उस सुलमान को सुलमान फारसी के नाम से जानता है। सुलमान कहते वालिद ने मजहब की तालीम घर से दिलाई, फिर खेती बाड़ी के लिए मुझे बाहर निकाला। सरे रात ईसाइयों का गिरजाघर आया। फरमाते मेरा जी चाहा कि मैं इन लोगों की मजहबी जिंदगी देखूं, ये लोग कैसे हैं। फरमाते मैं काफी देर वहां खड़ा रहा, बैठा रहा। रात मर्जी से घर आया, बालक बड़ा गुस्से में था। पूछते कहाँ थे इस वक्त तक? फरमाते मैंने सच सच बता दिया कि मैं गिरजे में था और मुझे उन लोगों ने मुतासिर किया है। अब उस मजहब की मोहब्बत दिल में रखता हूँ। सुलमान कहते वाला डर गया कि कहीं ये मजूसियत को छोड़कर ईसाइयत को कबूल न कर ले। मेरे वालिद ने मुझे लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया। रद्द अमल के तौर पे जिद पैदा हुई। सुलमान कहते मैंने फैसला कर लिया अब यहाँ नहीं रहना। फरमाते मुझे सबील मिली, मैं मुल्क शाम आया और वहाँ एक आलिम से मुलाकात की, अपने हालात से आगाह किया कि इस मजहब की मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई है। तिश्ना हूँ, मेरी प्यास बुझाओ। फरमाते तादम आखिर जब तक वो जिंदा रहा मैंने बड़ी खिदमत की। दोस्त अल्लाह की आदत है, खिदमत गुजार लोगों को सिला अल्लाह जरूर अता फरमाता है। सुलमान कहते जब वो मरने लगा तो मैंने कहा जाऊं तो कहाँ जाऊं? उसने कहा नसीबैन चला जा, वहाँ एक आलिम में वो तेरी तशफ़ी करेगा। फरमाते मैंने उसकी भी बड़ी खिदमत की। जब वो मरने लगा सरापा सवाल बन के सामने खड़ा था, अब जाऊं तो कहाँ जाऊं? उसने मुझे एक और जगह नसीबैन भेज दिया। फरमाते मैंने उसकी भी बड़ी खिदमत की। जब वो मरने लगा तो मुझे उसने एक और जगह भेज दिया। फरमाते जब वो मरने लगा तो मैंने कहा अब किस चौखट का बेकारी बनाओगे? उसने कहा सुलमान बाखुदा अब मेरी नजर में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी खिदमत में मैं तुम्हें भेजूं। दिल की नैया डूबने लगी, अंधेरे छाने लगे, ऐसा लगा कि दीवार आ गई। उस आलिम ने जब डूबती नैया देखी तो किनारा देता है। कहा सुलमान कलेजा फट जाएगा। कहा अब आखिरी ज़माना मोहम्मद का जमाना करीब आ गया है। नखलुस्तान दो जले मैदानों के दरमियान तशरीफ लाएंगे। सुलमान कहते अगर सरजमी पालूं तो उस नबी को पहचानूंगा कैसे? कहा उनकी 3 निशानियां। नंबर 1 वो सदका नहीं लेंगे, नंबर 2 वो हदिया कबूल करेंगे, नंबर 3 उनके दोनों कंधों के दरमियान महाज़े कल्ब पे मोहरे नबूवत होगी। कहता सुलमान अगर तू वहां पहुंच सकता है तो पहुंच जा। फरमाते मैंने रखते सफर बांधा, दौड़ लगा दी। सरे राह मैं अपनी भी स्पीड बता रहा हूँ, सरे राह बड़ी कल्ब का काफिला मिला और उससे कहा कि मेरे पास कुछ गायें बकरियां हैं, ये मुझसे ले लो और अपनी सरजमीन तक पहुंचा दो। सुलमान कहते इस बात पे राजी हो गए, लेकिन बड़े जालिम थे कि एक जगह पे जाके झकड़ लिया गया, मुझे गुलाम बना लिया। गुलामी होती तो बड़ी तलह, कहते बड़ी धक्के खाए। कहते उन्होंने फिर मुझे एक यहूदी के यहाँ फरोख्त किया। फरमाते फिर उस यहूदी ने मेरा सौदा एक और यहूदी के यहाँ किया। फरमाते उस यहूदी का ताल्लुक हुजूर के शहर मदीना से था। मंजिल नसीब होगी, अब उड़ीकने लगे।
किसी ने गुजरते कह दिया दीवाने जिसकी राहों में बैठे हो ना वो प्यारे मोहम्मद दुनिया में जलवागर हो चुके हैं। अब सलमान कहते जी चाहा कि उड़ के हुजूर के कदमों में चला जाऊं। वो क्या किसी शायर ने कहा था ना कि ऐ-ज़ोफ़ मदद कर दर अहमद पे गिरा दे, दरबान कहे उठ कहूं उठा नहीं जाता। गुलाम मर्जी से नहीं जीते भाई, हिजर की आग में जलना पड़ा, इंतजार की राहों में तड़पना पड़ा, फिर हमायूं गड़ियां आई, सादत बख्श लम्हे नसीब होते हैं। सलमान कहते मैं बाग में था, खजूर के दरख्त पे चढ़ा था और उसकी खिदमत में लगा था कि अचानक मेरे मालिक का चचाजाद भाई आया, बड़े गुस्से में था, आके कहता खुदा सत्यानाश करे औसो हजरत का एक शख्स इद्दियाए नबूवत मक्का से हमारे यहाँ आया और लोग उसके गिर्द जमा हो गए। सलमान कहते हैं मेरे जिस्म पर कभी तारी हो गई, मैंने ऊपर से छलांग लगा दी, अंजाम से बाखबर था, सवाल किया तो पीटा जाऊंगा, लेकिन नामे मोहम्मद की मस्ती तबीयत में ऐसी चढ़ी कि अंजाम से बेनियाज हो गया। करीब जाके तस्करे दिल नवाज छेड़ दिया, जालिम ने मुंह पे मुक्का मारा। खैर वो कहता ना जख्म पे जख्म खा के जी खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी ये इश्क है दिल लगी नहीं, और जो सीस तली पे धर न सके वो प्रेम नगर में आए क्यों, मुंह पे मुक्का लगा, कहते कोई मसला नहीं। फरमाते रात की तारीकी छाई, खाना लिया, हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। मेरे नबी उस वक्त कुबा में अपने गुलामों के झुरमट में थे। भाईजान ये दीवाना कहां से चला है, अस्फहान से, शाम आया, शाम से नसीबैन आया, यहूदियों के हत्थे चढ़ा, दर दर की गुलामी धक्के खाए, आज मंजिल नसीब होने जा रही है। लेकिन वो तीन बातें जो आलिम ने बताई हुई थी वो पेशे नजर थी। सलमान कहते मैंने खाना हुजूर की खिदमत में पेश किया, मैंने अर्ज किया हुजूर आप एक लंबा सफर करके मक्का से हमारे यहाँ यसरब आए हैं और मेरे पास ये सदके का खाना है, आप इसके हकदार ज्यादा है, कबूल फरमा ले। सलमान कहते हुजूर ने वो खाना खुद नहीं खाया, गुलामों में बांट दिया, एक निशानी पूरी होगी। कहते मैं दोबारा फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने अर्ज किया हुजूर सदका नहीं हदिया है, तो मेरे नबी ने कबूल फरमा लिया, दो निशानियां पूरी होगी, दिल थाम के बैठिएगा, मंजर बड़ा खूबसूरत है, अब एक निशानी बाकी है। सलमान कहते हुजूर बकी में अपने गुलाम की तदफीन में मशगूल थे और मैं भी वहां मौजूद था। कहते मैं जल्दी से हुजूर के पीछे आके खड़ा हुआ कि आज मोहरे नबूवत की ज़ियारत करूंगा। कहते ये शौक मुझे पीछे लाके खड़ा कर देता है। कहते जब पीछे आके खड़ा हुआ ना, हुजूर ने पलट के मेरी तरफ देखा, हया से आंखें झुकी हुई थी, आंखों में उदासियां और दिल में मोहब्बत की बिछी हुई कायनात थी। मेरे रसूल को प्यार आ जाता है, कमर से चादर उठा देते हैं, मोहरे नबूवत को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बदन से लिपटते हैं, बदन को चूमना शुरू कर देते हैं। फिर सलमान की आंखों में अथरू थे, जी भर के रोए। रसूलुल्लाह सामने बिठा के फरमाते हैं सुनाओ ना कहानी, हमारा प्यार तुम्हें कहां से खींच लाया, मोहब्बत की कहानी। फिर कुछ यूं कह डाली, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। भाई ये सलमान फारसी भी हुजूर की राहों में, बहीरा राह भी हुजूर की राहों में, तुब्बा अव्वल भी हुजूर की राहों में, उस शाख की बस्ती भी हुजूर की राहों में, अल्लाह के खलील की तड़पती दुआएं भी हुजूर की राहों में। और भाई सारे हुजूर की राहों में खड़े हैं। मेरा सवाल आपसे है, मुझे बताइएगा क्या हमें तहज्जुद के वक्त उठना पड़ा, ठंडे पानी से वजू बनाना पड़ा, मुसल्ला बिछाना पड़ा, पेशानी झुकाना पड़ी, मिन्नत समाजी करना पड़ी? और नहीं भाई, हम सोए थे, वक्त सवल्ला निकला, हमें बादे सबा के झोंकों ने पैगाम दिया, मदीने से आने वाली ठंडी हवाओं ने संदेशे दिए, आंख खुली, माहौल में ताजगी खुशबू इतनी फैली हुई थी, हमें इन हवाओं ने, इन फिजाओं ने मुस्कुरा के पैगाम दिया कि तुम्हें मुबारक हो कि तुम मोहम्मद के गुलाम बनकर आ रहे हो। इस बात पे हम जितना भी फख्र करें वो कम है। वो न्याजी कहा करते थे ये मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, याद उनकी न भूलो न्याजी कभी, वो कहे उम्मती तू भी क्या या नबी, मैं हूँ हाजिर तेरी चाकरी के लिए, फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको। और मेरे किबला फरमाते हमें सो नाज है इस पर कि हम तेरे ही मांगते हैं, कोई भी दर तेरे दर के सिवा हमने नहीं देखा, हबीबे दूसरा सा दूसरा हमने नहीं देखा, जो पहुंचा हो सरे अर्श औला हमने नहीं देखा। अल्लाह ताला आप सबका तशरीफ लाना कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। बारान रहमत का नुज़ूल हो रहा है, जितना हम कर सकते थे हुजूर के मिलाद के लिए हमने अपनी निसाब के मुताबिक किया। रब ताला ने कबूलियत के लिए बारान रहमत का नुज़ूल कर दिया। जिसने इसको जहमत समझा मैं उनसे दिली तौर पे माज़रत खा हूँ। अल्लाह करीम आपका आना कबूल फरमाए। यकीनन अब मज़ीद किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है, सिर्फ हमारे पास उम्रे के लिए जो
शनाख्ती कार्ड हमारे पास जमा है। मैं चाहूँगा किबला शाह जी भी मौजूद हैं और किबला मुस्तफ़ा साहब उस्ताद मुकर्रम मौलाना अब्दुल हमीद साहब सैयालवी आगे तशरीफ़ ले जाए। किबला पीर राशिद मसूद कल्याणी साहब अब अपने दस्ते मुबारक से ये तमाम दोस्त कुरान अंदाज़ी फरमाएंगे। आने वाले तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने शील्ड्स वगैरह और आप दोस्तों की हौसला अफजाई के लिए तमाम उलमा के लिए शील्ड्स का एहतमाम किया था, लेकिन वो अब आपको बाद में मैं पेश कर दूंगा। बिस्मिल्लाह। हुज़ूर इधर करें, इसको स्लाइड करें। परेशानी मुझे बाहर निकला तो नाव अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह ताला। जी, पहला हमारा जो टिकट था वो पलीना डाकखाना और दूसरा कंगर से। अगर डॉक्टर शिराज शेरी साहब इधर मौजूद हैं तो वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। पिछले साल उनका टिकट निकला था, तो चूँकि कोरोना की वजह से बंदिश थी तो अभी तक हम उनकी अमानत उनके सुपुर्द नहीं कर सके। वो स्टेज पे आ जाएं और आज हम उनकी अमानत उनके सुपुर्द कर देंगे। आज के जो खुश नसीब हैं जी महफिल के, वो ज़िला रावलपिंडी, तहसील गुजर खान, डाकखाना है नौंटला। डाकखाना नौंटला ये हमारे कंगर ठाकरा से भी आगे हमारे पाकिस्तान का आखिरी किनारा है। उसके आगे फिर आगे छतरो खादमाबाद डडियाल शुरू हो जाता है। तो ये दरिया के किनारे गांव है जी। ये खुश नसीब हैं जी। और ये सुन लें, अगर वो महफिल में मौजूद ना हुए, ये पहले सुन लें, अगर वो महफिल में मौजूद ना हुए तो हम दोबारा कुरान अंदाज़ी करेंगे। ये हमारी वो जो वहाँ पे डब्बा रखा हुआ था, वहाँ पे शराइत में ये बात मौजूद है, उनका होना ज़रूरी है जी। डाकखाना नौंटला से तनवीर लियाकत, वालिद का नाम है लियाकत हुसैन। तनवीर लियाकत हुसैन जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तनवीर लियाकत वल्द लियाकत हुसैन डाकखाना नौंटला से। अपना शनाख्ती कार्ड दिखा दें। शनाख्ती कार्ड पास है? शनाख्ती कार्ड माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बोलते हैं किस्मत जी। बिस्मिल्लाह। ये दिखा जाइए टिकट। पीर साहब शाह जी हफीज़ुल्लाह मुस्तफ़ा साहब उस्ताद मुकर्रम, ये टिकट जो है वो उनके अल्लाह करीम इनका वहाँ पे जाने के असबाब जल्दी फरमाए और वहाँ पे जाके कि हमारे नुमाइंदगी करते हुए हुजूर की बारगाह में अल्लाह के दर पे हम सब के लिए दुआएं मांग सकें और अल्लाह करीम हम सबको वहाँ की मुबारक हाज़िरी नसीब फरमाए। डॉक्टर शिराज शेरी साहब आगे आ जाएंगे। पिछले साल इनका टिकट निकला था, तो चूँकि ये जा नहीं सके तो अब हम ये अमानत इनके सुपुर्द कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम इनका जाना भी मुबारक फरमाए। अल्लाह सबको मदीने ले जाए। मैं किबला उस्ताद मुकर्रम आप दो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई इज़्ज़त व इकराम के लायक आज की पकीज़ा महफ़िल में तशरीफ़ फरमा सादात किराम, उलमाए किराम, फाज़ किराम और खला कबर से तशरीफ़ फरमा बरदरान इस्लाम। इंतहाई खूबसूरत महफ़िल डॉक्टर खलील शहजाद साहब ने, उनके साथियों ने और लकी ग्रुप ने मुनक्कद की। मैं शार्ट यही कह सकता हूँ कि आज की इस खूबसूरत महफ़िल में आप ही नहीं बल्कि आपकी इस महफ़िल में आसमान वाले भी शामिल थे और इस रिमझिम के अंदर
जिस खूबसूरत अंदाज में क़िबला कारी साहब ने तिलावत फरमाई, शाह जी ने खूबसूरत अंदाज में सनान खानी फरमाई, और हमारे भाई मुस्तफा साहब ने जिस मोहब्बत से एक पैगाम आपको दिया, मैं कहता हूँ कि ये डॉक्टर साहब की खुलूस और मोहब्बत का एक सिला है कि मेरे परवरदिगार ने उनको ये खूबसूरत महफल जब अता फरमाई। बेशक यूँ महसूस होता है मौसम में थोड़ी बहुत जो तब्दीली है, मेरे ख्याल में हम इसको रब की रहमत समझते हैं, क्योंकि वो आई वो ज़ात है जो सारे जानों के लिए रहमत बन के आए। अब बाबाजी वकार मुस्तफा साहब ने जिस हस्ती की बात की थी, हज़रत सैयदना सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हीं के बारे में मैं एक बात आगे रख देते अपनी जो है वो दुआ के लिए फिर करता हूँ, क्योंकि मौसम इससे हाजिर है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में हाजिर है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फ़ारसी बोलता हूँ, यहाँ मदीना तैयबा के अंदर जो है सारे अरबी बोलते हैं, मुझे अरबी आती नहीं, आप करम फरमाएं मुझे अरबी पढ़ा दे, अरबी आप मुझे भी सिखा दे। सरकार मुस्कुराए, फरमाया सुलेमान, जिस तरह मैंने 1200 पौधों पे मुश्तमिल तेरा घर बनाया है ना, तेरे लिए बाग बना के तुझे यहूदी से आज़ाद किया है, तुझे फ़ारसी भी ऐसे ही अरबी भी पढ़ाऊँगा। पास बुलाया, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लवाब सुलेमान फ़ारसी के मुंह में डाल दिया। आप फरमाते हैं मदीने में मुझसे बढ़ के अरबी बोलने वाला है ही कोई नहीं। उस हस्ती के बारे में हम क्या कह सकते हैं, इतनी कहेंगे कितनी तस्कीन वबस्ता है तेरे नाम के साथ, कांटों पे भी नींद आ जाती है आराम के साथ, ये तो सरकार की उल्फत है वगरना कौन लिपटता है यूं दरो दीवार के साथ। मैं हमारे पास बाबा जी कल्याणी रहमतुल्लाह अलैह के वो फूल तशरीफ़ लाए हैं, जिनकी खुशबू, जिन बाबा जी की खुशबू इस पूरे इलाके में हर वक्त आती रहती है। तो यकीनन मैं यही चाहूँगा कि दुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दो अल्फाज एक दो शेर की शक्ल में अर्ज़ करता हूँ कि दिल मंजिल हबीब में और जहाँ सफ़र में है, घर से चला हूँ और मदीना नज़र में है, जो उनके ज़िक्र में है, जो उनके ज़िक्र में है वो है उनकी याद में, जो उनकी याद में है वो उनकी नज़र में है। अल्लाह की ये हाज़री और ये काविश कबूल फरमाए, यकीनन ये मकबूल है। आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ अल्फ मर्रा व बारिक व सल्लिम। मौला करीम तेरी तौफीक, तेरे करम, तेरी इनायत से ये इतनी मकबूल खूबसूरत महफिल हमें तेरे महबूब की मिली। मौला पाक इसे कबूल व मंजूर फरमाते हुए इसके बदले में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला करीम हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के साथ सच्ची मोहब्बत अता फरमा। मौला करीम हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत का चराग रोशन फरमा। मौला पाक की जिन दोस्तों ने ये महफिल सजाई, यहाँ रहते हुए और गैर मुल्क में, मौला करीम उन सब को अजर अजीम अता फरमा। मौला करीम तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजला अता फरमा। भाई अदनान बीमार है, मौला करीम उन्हें खसूसी तौर पर इल्तिजा है, शिफाए कुल्ली अता फरमा। मौला दूर नज़दीक से आने वाले तमाम मेहमान को ईमान की दौलत अता फरमा, हुजूर का कुर्ब अता फरमा। और ये जो मदीने की हाज़री वाला संगी है, इसकी हाज़री भी कबूल फरमा और हम सब को दर सरकार की हाज़री अता फरमा, अपने पाक घर की हाज़री अता फरमा। मौला करीम इस महफिल को सजाने में और बिलखसूस ये टिकट देने में जिन्होंने ताउन किया, भाई खलीक साहब के साथ, उनको अजर अजीम अता फरमा, उनके माल जान में बरकत अता फरमा। ये सरकार की सना खान है, मौला करीम ये तेरे महबूब की सिफात बयान करते हैं,
ان کو مولا پاک صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، ان کے خلوص و محبت میں اضافے فرما۔ مولا کریم جو تیرے دین کے خدمت گار ہیں ان کی مدد فرما، اس علاقے بستی پر کرم فرما۔ مولا پاک دلوں میں جو حاجات ہیں حضور کے ذکر سے پوری فرما۔ وصلی اللہ علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت، تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ تمام مہمانان حضرات جو ہیں، بارش یقیناً تھم چکی ہے، جو جس رستوں سے آپ آئے ہیں یہ رستوں سے آپ چلے جائیں گے کہ سامنے اسکول ہے، مسجد کے سامنے گیٹ ہے، اسکول کے اندر تشریف لے جائیں گے، وہاں پہ آپ کے لیے برآمدہ ہے، وہاں برآمدے کے اندر لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے، وہاں سکون سے بیٹھ کر تحمل سے صبر کے ساتھ تشریف فرما ہو جائے لنگر حضور کے میلاد کا تناول کیجیے اور پھر اپنی اپنی سواریوں پہ احتیاط کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ کریم سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ تمام علماء، حفاظ، قرہ حضرات، اساتذہ کرام، دور و نزدیک سے جتنے بھی ہمارے مہمانان تشریف لائے ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ فرینڈ ساؤنڈ سسٹم والے بیول کے ہمارے دوست ہیں ہارون بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہمارے بھائی محمد ہارون کے والد گرامی کی درجات بلند فرمائے، ان کی کامل اکمل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ہماری جو میڈیا ٹیم ہے، اپنا چینل ہمارا مندھال ٹی وی، لکی گروپ، فرینڈز ساؤنڈ والوں نے اور جتنے بھی ہمارے کیمرہ مین ہیں جنہوں نے آج کی اس محفل کی کوریج کی، ریکارڈنگ کی، تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچیوں نے جو پردے میں بیٹھ کر اس محفل پاک کو سنا ہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ دنیا بھر میں ہمارے ساتھ جتنے بھی ہمارے چاہنے والے اس محفل کے ساتھ شریک رہے، اللہ کریم سب کو دارین کی سعادتیں اور دنیا جہان کی خوشیاں حضور کے میلاد کے صدقے میں عطا فرمائے۔ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جہاں سے آپ آئے اللہ ہر سانس کے بدلے، ہر قدم کے بدلے آپ کو دونوں جہانوں کی خوشیوں کی خیرات عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگ حضرات بہت دور سے تشریف لائے، ماشاءاللہ ملک غضنفر صاحب، ملک پرویز صاحب، میں تہ دل سے تمام ہر اس شخص کا جس نے محبت سے اس محفل کو جس نگاہ نے دیکھا ہے ان کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حاجی محمد حنیف قادری صاحب تھاتی سے ماشاءاللہ اس بزرگی کی حالت میں تشریف لائے۔ جتنے بھی بزرگ، بچے، بوڑھے، میرے اب سب کے نام لینا ممکن نہیں ہے، جنہوں نے ہمارے ساتھ فرینڈز ٹینٹ سروس والوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، لکی گروپ صبح سے کل سے یہ لگے ہوئے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جنہوں نے لنگر کی صورت میں تعاون کیا ہے، اللہ کریم سب کا آنا، سب کی محبتیں اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن تحریک اور منہاج علماء کونسل اور جتنے بھی فورمز، ہمارے برادری جبر، نیو اسلام آباد، جن نجار، تحصیل گجر خان، یونین کونسل تھاتی، یونین کونسل اسلام پورہ جبر، بیول، کلر سیدہ اور جہاں جہاں سے دوست تشریف لائے ہیں، میں تہ دل سے آنکھیں راہ فراش کیے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے۔ لکی سٹار اکیڈمی اسکول آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہاں تحمل سے تشریف رکھیے، لنگر تناول کیجئے اور پھر اللہ کریم آپ کو اپنے حفظ و امان میں اپنی منزل تک پہنچائے۔ سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے جانی، مالی، دامے، درہمیں، سخنے، قدمیں، قول، فعل جس طرح بھی تعاون کیا ہے، میں سب کا بہت مشکور ہوں۔ حافظ عثمان نذیر صاحب آج کے پورا دن ہماری